Very good morning all the students. Today we will see the numericals on the stiffness matrix of a 2D beam elements. So as shown on the screen, this is the 4 by 4 K matrix of a beam element without the axial deformations. We have already seen the derivation of the same in our last lectures. So basically we will start with the revision of the stiffness matrix of 2D beam. So as shown on the screen, this is a K matrix of the beam element, and in this case if you see that there is no AE by L element is there, that means in this case the axial deformation in the beam is neglected. Okay, so whenever the axial deformation is neglected, the matrix size for the 2D beam element will become 4 by 4. Okay, 4 by 4 means this is 1 2 3 4 and this is 1 2 3 4. V represent the vertical, R represent the rotation component. So V and R will be more accurately defined and will be better understand when we will solve and when we will start our numericals. Okay, so let us see the formulation. So this is the generalized equation, or you can say the generalized K matrix form of a 2D beam element. So if you take EI by L as a constant outside the bracket, outside the matrix, then you will get the simplified form 12 by L square 6 by L like this. Okay, so let us see the step-by-step procedure before starting the numericals. Okay, so in your examinations this chapter will carry total weightage of 13 marks. Okay, and there are 2 numericals, and based on that you have to solve only one. So obviously one numerical is of very easy, and second one is somewhat difficult. Okay, so let us see the step-by-step procedure. First of all, you have to identify the DOKI. So the diagram will be given. Okay, so based on the diagram you have to identify how much unknown degree of freedom, okay, and how much unknown you have to calculate. So that will comes under the category of DOKI, that is degree of kinematic indeterminacy. Okay, then second is, after analyzing the DOKI, okay, you have to mark the unknown as well as the known degree of freedom at each nodal point. Each nodal point means at each joint. You have, joint is nothing but a nodal point, so at each joint you have to mark the known or unknown degree of freedom, or you can use the symbol as 1 2 3 and ABC. So basically 1 2 3 you can use. Then step number 3 is to remember, always start writing the symbol with unknown degree of freedom first. That is, if you suppose if you have a multiple span beam, okay, and out of which you have to calculate the unknown and unknown values of theta and all that, so you have to start marking the unknown values or unknown part, that is the theta as well as the unknown reactions. Okay, so you have to mark that one first, and then you have to proceed for the known degree of freedom. Okay, so this is the generalized symbol representation. First of all, you have to go for vertical reaction is there, so you have to go for 1, then you have to go for 2, then 3. Okay, so this likewise you have to go for 1 2 3. 1 for vertical reaction, horizontal for axial deformation or axial forces, and third for rotation. So as you know that in our most of the cases, in about 90% of our numericals, 90 to 95% of numerical whatever it is asked in your examination, that the axial deformation will be neglected. So in that case the symbol 2 will not be considered, only 1 and 3 will be considered. This vertical or rotation component you have to mark. So if you neglect this 2, then you will get 1 and 2. Okay, like this. So then after this you have to calculate the stiffness matrix, okay, of 2D of 2 nodal point at a time. Okay, 2 nodal point means, suppose the span of AB and BC is there, so you have to consider first AB span then BC span. So you have to calculate the stiffness matrix for the AB span separately as well as the BC span separately. Okay, so likewise you have to calculate the 2 stiffness matrix of 4 by 4.
Okay, so this is the generalized form, this is the simplified form. You have already seen the derivation. Then next step is to calculate the global stiffness matrix. Okay, after calculating the individual stiffness, you have to combine the stiffness matrix, okay, in the form of K matrix. The K matrix you have to calculate, which will be unknown. Then calculate the global load vector. Global load vector you have to calculate. Okay, the global load vector will become whatever the load vector will be there, you have to consider. Okay, then displacement calculation, K into df is equal to AFC. Then the calculation of final member forces. So all these step will be better understand when we'll start our numerical. So this is the generalized step by step procedure to calculate the stiffness forces or stiffness matrix of a 2D beam element. So by this method we can calculate the unknown degree of freedom in the form of theta, in the form of bending moment and shear force. Okay. So let us start with our numerical. Okay, so this is the numerical. So this is a continuous beam, if you see that. Okay, so under this joint A is there, okay, joint B is there and joint C is there. Okay, out of this there are two unknown degree of freedom. Okay, how two degree of freedom is there, let us see. If you see the diagram, okay, this is a continuous type of a beam having one end is fixed and other two ends are supported. Okay, so out of which we can calculate the reactions, we can calculate the moments, etc. All these value we can calculate easily by using the condition of equilibrium. But we cannot calculate the formation of theta, which will be formed at joint B, and the formation of theta C, which will be formed at C. Okay, so theta B and theta C, these two values, this is theta B and theta C, we cannot be calculated. We cannot calculate it by using the simple equilibrium condition, that is summation fx fy or moment equal to 0. So in this case the unknown degree of freedom is 2, that is unknown is theta B and theta C will be unknown. Theta A will be known as a 0 because it is a fixed support. So in this case we have to calculate theta B, theta C first, and then based on that we have to calculate the bending moment and shear force. Okay, so let us start marking the unknown first. So first is rotation component, we have to consider as a theta. Theta will always comes under rotation. Okay, always remember theta will comes under the rotation component, so it will be considered as 1. So we have marked 1 as first part because it is unknown. Then second we have considered theta C, therefore second rotation component will be considered as your theta C. So theta A and theta B and theta C will be marking number 1 and 2 always, because these are the unknown component. Then we will go for the known component, that by sequence we will go for 3, that is theta C. This is rotation, we will consider the marking as 3. Then 4, 5 and 6. 4, 5, 6 represent the vertical components. Okay, so out of which 1 and 2 we have to calculate, and other thing, rest of the thing 3, 4, 5 and 6 will be known to us because it can be calculated by using condition of equilibrium. So always remember, whenever you have a indeterminate beam and you have asked to solve the numerical, then you have to start marking your numbering based on the unknown degree of freedom. So we have started as theta B and theta C are the rotation component, because of rotation the theta will be formed, therefore 1 and 2 as a rotation will be considered as a marking 1 and 2, and rest of the thing we will consider sequence wise. Okay, so you remember that here the degree of freedom is DOKI is 2, that is theta B and theta C. So we have to calculate theta B and theta C first, and then accordingly we have to calculate bending and shear force. So this is the output. Okay,
So let us start our numerical. तो formulation of the global matrix stiffness. तो SM1 that is stiffness matrix. SM1 मतलब stiffness matrix A 1 बोल सकते हैं और इसको बोल सकते हैं आप AB, because we have to calculate stiffness matrix for the number of member connected. So there are two members connected. AB is one member and BC is two members. Let us see AB. So if you see A and B, so at node A, okay, two numbers are there, 4 and 3, okay, and then 5 and 1. So here we have to consider 4 3 5 1 4 3 5 1. Now why 4 3 5 1 comes, why not 3 4 or 1 3 5 4? Because we have to consider the node wise sequence, and always as per the derivation the vertical component will come first, then rotation component, then vertical component, and then rotation. As we already seen our derivation, this we have seen this VR, okay, VR. So here also VR. So first of all we have to consider the fourth, that is the vertical component, then rotation third. So it will act on A, then similarly B 5 1, okay, here 5 1, okay, so 4 3 5 1 4 3 5 1. So now what you have to do, take EI as constant, EI बाहर निकाल लो, यहाँ पे यहाँ लिखा नहीं है एक्चुअली में, इसको होना चाहिए, EI कांस्टेंट निकाल लो. अब उसके अंदर में जो भी वैल्यू बची है, EI जब कांस्टेंट बाहर निकालेंगे तो ये अंदर का वैल्यू में आप EI बाहर निकालो, इसमें से ये EI बाय L निकाला हुआ है इसमें, तो इसमें आप EI निकाल लो क्योंकि L की वैल्यू अपने पास नोन है, इसमें 10. तो EI कांस्टेंट निकाल के अंदर जो भी फार्मूला बच रहा है आपका इसमें, तो अगर आप देखोगे इसमें EI कांस्टेंट निकालोगे तो क्या बचेगा, 12/L3 6/L2 12/-12/L3 लाइक दिस, ये आपको मैट्रिक्स मिलेगा. अब इसके अंदर में आपको जो भी वैल्यू है इसमें क्या करना है, यू हैव टू पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर. तो ये आपको आंसर मिल जाएगा फॉर स्टिफनेस मैट्रिक्स 1. तो सिमिलरली फॉर मेंबर ऑफ BC वी हैव टू कैलकुलेट. तो अब BC पे जाएंगे, BC, तो BC पे देखो कौन सा है, 5162 है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 5162. तो 5 रिप्रेजेंट द वर्टिकल कंपोनेंट, R रिप्रेजेंट द रोटेशन, देन वर्टिकल, देन रोटेशन. सिमिलरली हियर आल्सो 5162 वर्टिकल रोटेशन एंड रोटेशन कंपोनेंट. ओके, EI इसमें भी बाहर निकालो, यहाँ लिखा नहीं इसने, इसको करेक्शन कर लेंगे, EI बाहर निकालो और इसके बाद में ये कैलकुलेट कर लो. ओके, तो SM1 SM2 वी हैव कैलकुलेटेड. Okay, that is the stiffness matrix for member AB we have calculated and BC we have calculated. Now what we have to do, now next step is the global stiffness matrix. Global stiffness matrix मतलब DOKI के बेस पे आपका निकलता है, DOKI कितना है आपका 2 है, थीटा B थीटा C. तो अब इसमें K मैट्रिक्स 2/2 का क्यों बना, इसको देखेंगे हम, क्योंकि आपका डिग्री ऑफ काइनेमेटिक डिटर्मिनेंसी कितनी है, 2 है. So therefore the stiffness matrix will be global stiffness matrix will be 2/2 only. Okay, और कौन से नोट पे और कौन से इस पे रहेगा, ये रहेगा आपका, वो रहेगा आपका 1 और 2. आपको अननोन क्या निकालना है, थीटा B निकालना है जो रिप्रेजेंट करता है सिंबल 1, और थीटा C निकालना है जो आपका रिप्रेजेंट करता है सिंबल इसमें 2. तो 1 और 2 आएगा. अब आपको यहाँ पे लिखना है 1, यहाँ पे लिखना है 2, यहाँ पे लिखना है 1 और यहाँ पे लिखना है 2. तो K मैट्रिक्स विल बी ऑफ 1 2 1 2. अब ये जो है 1 और 2, ये आपका SM1 और SM2 में आपको पहले 1 1 चेक करना है, 2 1 चेक करना है, फिर 1 2 चेक करना है और 2 2 चेक करना है. तो देखो कैसे कैलकुलेट करते मैं बताते हैं. ये वैल्यू कैसे आई 1.07. पहले आपको कंसीडर करना है 1 1, पहले वाले मैट्रिक्स में आते हैं 1 1. देखो ये 1 है और आपका ये 1 है, तो ये कितना हो गया 0.4 हो गया, पहला ये 0.4 हो गया. अब इसमें देखते कहीं 1 1 है क्या, ये 1 है और ये 1 है, तो ये हो गया 0.67. तो 0.67 और 0.4 कितना होता, ये हो गया 1.07. समझ में आ गया. उसी तरीके से 2 1, नाउ वी हैव टू कंसीडर 2 1. ओके, तो पहले वाले केस में 2 है क्या, 2 1, इसमें 4 3 5 1 है, फिर इसमें नहीं है कहीं, यहाँ है क्या, ये है 2 और यहाँ पे ये 1, ये कितना है 0.33. तो ये देखो ये 0.33, ये आ गया 0.33 2 1. ओके, तो आपको इस तरीके से निकालना है. उसी तरीके से 1 2 देखो 1 2 इसमें है क्या, हाँ ये 1 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे है क्या 2 1, ये है 2 है और यहाँ पे ये 1 है, तो ये कितना हो गया, सॉरी 1 2 बोल रहा है आपको ना. तो ये 1 यहाँ नहीं है, यहाँ पे ये 1 है और ये 2 है, ये 1 वाले वर्टिकल कॉलम में जाएंगे और 2 वाले रो में जाएंगे, तो ये आ गया 0.3, तो ये आ गया 0.33. आ गया समझ में. फिर ये 2 2, तो 2 कॉलम 2 रो, देखो 2 2 है क्या यहाँ पे, 4 3 नहीं है इसमें, 2 2 ये है, 2 ये है और यहाँ पे 2, ये कितना है 0.67, तो ये कितना है 0.67. तो ये कॉलम और रो आपको चेक करना है दोनों के
कॉम्बिनेशन को मिला के, और उसकी जो भी वैल्यू है उसको आपको एडअप करके यहाँ पे ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स में लिखना है। तो आपका के मैट्रिक्स कितने का बनेगा 2/2, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट 2 अननोन डिग्री ऑफ फ्रीडम, दैट इज थीटा बी एंड थीटा सी। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द ग्लोबल लोड मैट्रिक्स। अब ये निकालने का तरीका देखो क्या है। सबसे पहले आप ये व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू स्प्लिट आवर 2 बीम्स इनटू डिफरेंट पार्ट। तो दो पार्ट में कन्वर्ट करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम में। उसके बाद में उसकी लोडिंग आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके बाद में इसका ये जो निकला 73.5, 31.5, ये 30 और ये 30 कहाँ से आया। सबसे पहले अपने को ये कैलकुलेट करना है। सो ये आया है आपका फिक्स्ड एंड मोमेंट, इट इज नथिंग बट फिक्स्ड एंड मोमेंट। ये आपका 50 की लोडिंग है। आपका फिक्स्ड एंड मोमेंट का फार्मूला क्या है, अगर आपका इसेंट्रिक लोडिंग रहती है तो WAB²/L²। तो 50 × 3 × 7² 10 करोगे तो ये मिलेगा आपको 73.5। सिमिलरली हियर 50 × 3² × 7 डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो मिलेगा 31.5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्प्लिट योर मेंबर्स, देन यू हैव टू कैलकुलेट द फिक्स्ड एंड मोमेंट, एंड देन फाइनली यू हैव टू कैलकुलेट द रिएक्शंस लास्ट में निकालना है। पहले ये फिक्स्ड एंड मोमेंट निकाल लो, अपने डायग्राम को अलग कर लो, उसके बाद में कंबाइन होने के बाद में फिर इसको अलग से रिएक्शंस कैलकुलेट करो। तो ये आ गया रिएक्शन कंपोनेंट V कहलाता है, और ये है रोटेशन कंपोनेंट R। ये याद रखना क्योंकि ये आपको मैट्रिक्स में लगेगा। VR कहलाता है, ठीक है। ये हो गया V और ये हो गया इसमें R, ठीक है। यहाँ पे भी आप इसको स्प्लिट करेंगे तो ये पार्ट में आपका आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे भी ये हो गया V कंपोनेंट, ये हो गया आपका R कंपोनेंट। यहाँ पे भी ये V कंपोनेंट हो गया, यहाँ पे ये R कंपोनेंट हो गया, ठीक है। ये केयरफुली ध्यान रखो। अब देखो ये AML1 AML2 क्या होता है। AML1 मतलब कि लोड मैट्रिक्स फॉर मेंबर 1 एंड AML2 मतलब लोड मैट्रिक्स फॉर मेंबर 2। सो लेट अस सी हाउ दिस इज कैलकुलेटेड। तो ये आप कैलकुलेट कर लिया आपने, सिंपल इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा के 39.2, 10.8, 30 आ गया। अच्छा यहाँ पे ये कैसे आया 30, ये देख लेते। देखो इस पर क्या दिया हुआ है, इस पर लोडिंग दिया है 10 का, तो 10 WL²/12 करो, 10 × 6² 12 करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको 30। यहाँ पे आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 30, ओके। और साइन कन्वेंशन ऑलवेज ये रहेगा एंटी क्लॉकवाइज, ये रहेगा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज, ओके। नाउ AML1 में मैट्रिक्स लिखने का सीक्वेंस कैसा रहेगा, पहले रहेगा वर्टिकल, देन रोटेशन, देन वर्टिकल, देन रोटेशन। ये सीक्वेंस हमेशा फॉलो करना है, क्योंकि पहला हमेशा डेरिवेशन में भी पहला क्या था वर्टिकल, देन रोटेशन, देन वर्टिकल एंड देन फाइनली रोटेशन कंपोनेंट, लाइक दिस, ओके। सो हम लोग पहला कंसीडर करते हैं मेंबर 1। तो इसमें वर्टिकल कंपोनेंट क्या है 39.2, तो वी हैव रिटन 39.2। उसके बाद क्या है 73.5, ये आ गया 73.5, ओके। अभी साइन कन्वेंशन के बारे में मैं आपको बता दूँ क्या करना। अभी आप इसको एज इट इज लिखो, ठीक है। उसके बाद ये 10.8, फिर ये कितना 31.5 आ गया, ओके। उसके बाद में देखो ये 30, ये वर्टिकल का, फिर ये 30, ये 30 आ गया, फिर उसके बाद ये वर्टिकल कंपोनेंट का 30, ये आ गया, फिर उसके बाद 30, ये आ गया, ठीक है। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी हम लोग मैट्रिक्स स्टिफनेस मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं और उसमें जब हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में जब कोई वैल्यू लिखते हैं मैट्रिक्स में, ठीक है, तो उसमें रूल ये है कि आपका क्लॉकवाइज विल बिकम माइनस एंड एंटी क्लॉकवाइज विल बिकम प्लस। तो देखो ये क्या था, माइनस दिख रहा है अपने को क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। अगर अपन जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के हिसाब से देखेंगे, लेकिन हम लोग इसको मैट्रिक्स में लिख रहे हैं तो ये क्या लिखेंगे ऑलवेज प्लस। तो इट विल बी ऑलवेज प्लस इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब ये देखो ये दिख रहा है क्लॉकवाइज 31.5, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा आपका ये माइनस में आएगा। आगे समझ में। इसी तरीके से देखो ये -30 दिख रहा नीचे जा रहा, लेकिन ये कैसे आएगा इसमें प्लस में आएगा रोटेशन में, ओके। अब ये देखो यहाँ पे ये प्लस में दिख रहा, लेकिन ये किस में आएगा माइनस में आएगा। तो ये याद रखने का कि जब भी मैट्रिक्स फॉर्म में लोड मैट्रिक्स और जो भी स्टिफनेस में जब आपका आएगा लोड मैट्रिक्स में खास तौर से आपका रोटेशन कंपोनेंट, वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज विल बी प्लस एंड क्लॉकवाइज विल बिकम माइनस, ओनली इन मैट्रिक्स फॉर्म, सिर्फ मैट्रिक्स में। अब देखो ये हो गया लोड वेक्टर। अब ये है FC मतलब कोऑर्डिनेट के ऊपर में कैसा बनेगा। तो ये 1.5 और 3 कैसे आया, 1.5 और 30 कैसे आया। देखो सबसे पहले अपने को ये देखना है कि AFC का मतलब क्या होता है। AFC मतलब के कोऑर्डिनेट जहाँ पे अपने को थीटा निकालना है। आपको ये पता है कि ये 1 और 2 ये 2 पॉइंट थे आपके रोटेशन के। देखो ये रोटेशन का पॉइंट है ना 1, जहाँ पे थीटा B निकलेगा, ये याद रखो। थीटा 1 थीटा B कहाँ पे आ रहा है, ये वाले रोटेशन पे B का। तो मतलब आपको ये B के ऊपर में जो भी रोटेशन आपका कैलकुलेट होके आएगा उसको कंसिडर करके आपको निकालना पड़ेगा। और C के ऊपर में दैट इज थीटा C आपका क्या दिखा रहा था 2,
तो उसके ऊपर में आपको कैलकुलेट, इसके ऊपर में कैलकुलेट करके निकालने का है, ठीक है, ओके। उसकी इस तरीके से आपको इसमें निकालना है। सो अभी फर्स्ट इसमें वी विल सी द फर्स्ट पार्ट। तो देखो ये फर्स्ट में आपका पहला रोटेशन है, तो ये पहले रोटेशन में यहाँ हम लोग स्प्लिट करे थे डायग्राम। तो देखो ये वन पार्ट होता है। जब हम लोग ये दोनों को क्लब करेंगे और इसमें ये 31.5 और ये 30 इसको क्लब करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, पहला अननोन। तो 31.5 प्लस में है और ये 30 माइनस में है, तो ये दोनों को करो, कितना आ रहा है इसका आंसर, 31.5 और 30, ये आएगा 1.5, क्योंकि ये 31.5 प्लस में है और ये माइनस में, तो आंसर विल बी 1.5 प्लस। तो ये 1.5 प्लस में आ गया, ठीक। उसी तरीके से यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको रोटेशन कंपोनेंट कंसीडर करना है, क्योंकि आपको ये 2 अननोन किस पे था, यहाँ पे था, ओके। तो इस केस में डायरेक्ट 30 आपका दिया हुआ है, अगर आप देखोगे इसमें तो ये डायरेक्ट 30 अवेलेबल है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट 30 लेंगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट, AFC के अंदर में आपको इसको साइन कन्वेंशन को चेंज नहीं करना है, या एज इट इज़ जो भी आपका मतलब बाय समेशन आता है वही वैल्यू आपको कंसीडर करके लिखना है। लेकिन लोड मैट्रिक्स में आपको कंसीडर करना है अपोजिट साइन कन्वेंशन, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेशन। तो K इंटू DF इज इक्वल टू AFC। तो पहले K वैल्यू लिखेंगे, K कैलकुलेट किया आपने ऑलरेडी, वी हैव कैलकुलेटेड द K इन स्टेप नंबर 3। K वैल्यू ये लिखा हुआ है, K आपने लिखा हुआ तो K लिखाएंगे हम, K लिख दिए। देन EI बाहर हो गया इसमें, DF1 DF2 मतलब थीटा बी थीटा सी आपको निकालना है। DF1 डिस्प्लेसमेंट का जो पार्ट है थीटा बी थीटा सी का, ओके। डिस्प्लेसमेंट और थीटा बोल सकते हैं इसमें, जो भी आप निकालोगे इसमें। देन उसके बाद ये FC फैक्टर जो है 1.530, ओके, 1.530 बाहर रखेंगे। इसके बेस पे DF1 DF2 कैलकुलेट होगा, तो माइनस इसमें ये मैट्रिक्स फॉर्म को जो है कैलकुलेटर में पुट करो, इसके हिसाब से आप आंसर निकालोगे। तो DF1 DF2 -14.63 बाई EI आ जाएगा, और DF2 51.98 दैट इज 52 बाई EI आ जाएगा। तो ये दो वैल्यू आपकी डिस्प्लेसमेंट की थीटा की कैलकुलेट हो जाएगी। अब उसके बाद में एंड मोमेंट कैसे निकलेगा, फाइनल एंड मोमेंट, उसमें फॉर्मूला है AM1 इज इक्वल टू AML1 प्लस SM1 इंटू DM1। तो AML1 क्या है, AML1 मतलब कि जो लोड वेक्टर आपने कैलकुलेट करता है, जैसे AML1 दैट इज लोड वेक्टर, सॉरी लोड मैट्रिक्स जो निकाले थे मेंबर स्टिफनेस का पहला वाला, वो कंसीडर करेंगे। प्लस SM1 आपको याद होगा स्टेप नंबर 1 में याद निकाले थे हमने, ये SM1 ये लिखेंगे हम, तो ये आपका प्लस में आ गया। उसके बाद में DM1 अपना ये वाला पार्ट रहेगा। अब इसमें अगर आप देखोगे तो SM1 में आपका क्या था, 4351 आपका सीक्वेंस था। अगर आप देखोगे इसमें देखो 4351 था, यस 4351। तो यहाँ पे जब आप इसका DM1 लिखोगे तो ये भी 4351 लिखोगे। लेकिन आपको याद होगा कि आपका अननोन किस पे निकलना है, 1 पे रोटेशन पे और 2 रोटेशन पे, लेकिन 435 क्या है, सब जीरो रहेगा, क्योंकि ये आपका कैलकुलेट हुआ ही नहीं, ओनली आपका 1 और 2 के ऊपर में आपका कैलकुलेट हुआ है डिस्प्लेसमेंट या थीटा वैल्यू। तो आपको यही वैल्यू आपको केयरफुली रखना है, ये वैल्यू आपकी 435 विल बी ऑलवेज जीरो, ओके। इसको आप कैलकुलेटर में पुट करो ये मैट्रिक्स को, इसके बेस पे आप निकालोगे तो ये आपका आंसर निकलेगा 38.2 वर्टिकल आएगा, 70.57 रोटेशन कंपोनेंट आएगा, फिर 11.68 वर्टिकल आएगा और -37.35 अगेन रोटेशन कंपोनेंट। तो ये पहले का आपका कैलकुलेट हो गया मोमेंट्स। उसके बाद AM2 में दूसरा वाला वैल्यू कंसीडर करेंगे 30 वाला, तो ये लग दिया 30। उसके बाद में ये आपका सेकंड SM2 कंसीडर करोगे आप 5162, यहाँ पे भी आप कंसीडर करोगे 5162, वी हैव टू कंसीडर 5162, यहाँ पे भी रहेगा 5162, ठीक है। तो ये 30 5162, उसके बाद यहाँ पे भी लिखोगे 5162 DM का। अब देखो ये 1 वाला ऑलरेडी कैलकुलेट किया आपने, ये वाला कंसीडर करके, तो ये -14.63 आपको कंसीडर करोगे, ठीक है। इसमें
So after this 5162 and this 5162, we have to consider this minus 14.63, because at point 1, that is at rotation number 1, we have got the value of minus 14.63. तो इसको सॉल्व करो, इसके बाद में आपको ये वर्टिकल कंपोनेंट फाइनल वी आर करके कैलकुलेट हो जाएगा. ठीक है, इस 36.24, 37.36, 23.76 और 0. ओके, इसको ये मैट्रिक्स को जो है कैलकुलेटर में पुट करो और आंसर निकल जाएगा. उसके बाद फाइनली अब आपको इसमें क्या करना है, वैल्यू रख के स्प्लिट करके निकालना. अब देखो ये कैसे निकालेंगे. सबसे पहले 38.32 कहाँ से आया, ये आपका कैलकुलेट हुआ. 38.32 पहले मेंबर का ये लिख दिया आपने. उसके बाद देखो 70.57 आपका प्लस में रोटेशन आ रहा है, लेकिन इसको अपन काय में दिखाएंगे, माइनस में, क्योंकि ये मैट्रिक्स में, ये काय में कैलकुलेट हुआ आउटपुट, मैट्रिक्स में. अब मैट्रिक्स से आप कहाँ जा रहे हैं, वापस आप ओरिजिनल रिएक्शन पे जा रहे हैं, तो उसको काय में कन्वर्ट करेंगे, साइन कन्वेंशन अपोजिट हो जाएगा उसका. तो 70.57 इन मैट्रिक्स फॉर्म है, तो ओरिजिनल फॉर्म में क्या होगा, माइनस में जाएगा. तो इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज. अगेन 11.68 एज इट इज़ रहेगा, और ये जो है माइनस में जा रहा 37.35, तो इसको कैसे दिखाएंगे, 37.36 कैसे दिखाएंगे, प्लस में दिखाएंगे. आ गया समझ में. उसी तरीके से अब ये देखो 36.24 काय में जा रहा, वर्टिकल, ये वर्टिकल है, तो ये 36.24 आ गया. फिर 37.36 कैसे जा रहा, रोटेशन में, प्लस में जा रहा, तो इसको कैसे दिखाएंगे, माइनस में. अब आप देखोगे 37.26, 37 पर ये क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली नलीफाई होके 0, मतलब आपका आंसर राइट है. सिमिलरली 23.76 ये वर्टिकल और ये 0. अब ये होने के बाद में आपको इसके बेस पे ये आउटर जो मोमेंट है इसको कंसीडर करके BMD प्लॉट कर लो, और ये कंसीडर करके SFD प्लॉट कर लो. ठीक है, दिस इज द फाइनल आउटपुट ऑफ योर आंसर, दिस shear bending moment and shear force. So this type of numerical will be asked in your examination for about 13 to 14 marks. So we will see n number of numericals, okay, in our next lecture series. Okay, so that your doubt will be more clear. Okay, so thank you for your kind attention. Thank you.